जिन स्टूडेंट्स ने बीएम मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपने चैनल बीएम मैथ्स कॉर्नर को सब्सक्राइब करें. So dear students, in our previous lecture we have studied composite function. Today we are going to continue the same topic, that is derivative of composite function, and we will solve some more problems today. So this is question number 4 from exercise 1.1. A table is given and we have to find the derivative of the following four questions, out of which first one is r of x equal to f of g of x. पहला फंक्शन है r of x f of g of x है और हमको r डैश ऑफ 2 फाइंड करना है. तो मैं आपको बता दूं, जब भी किसी फंक्शन के ऊपर डैश लिखा हुआ होता है तो आपको समझना है कि वो जनरल फंक्शन का डेरिवेटिव है. अब जनरल फंक्शन क्या होता है यहाँ पर r of 2 का डेरिवेटिव होता है r डैश 2. मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. देयर आर टू फंक्शंस, एक फंक्शन f है दूसरा g है. तो पहले हम f का डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद में g का डिफरेंशिएशन लेंगे. f of x का डेरिवेटिव होता है f डैश x, मीन्स f डैश ऑफ x मीन्स दिस होल ब्रैकेट, then derivative of g of x, f dash of g of x it is as it is. now g of x का डिफरेंशिएशन होता है g dash x. हमको r dash की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 फाइंड करना है. तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रख देते हैं. r dash of 2 इक्वल टू f dash of g of 2 इंटू g dash of 2 f dash of. अब देखिए g of 2 की वैल्यू इस टेबल से लेना है हमको. g of 2 की वैल्यू कितनी है 6. अब g dash 2 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए g dash 2 है 4. नाउ f dash of 6 कितना होता है, ये देखिए f dash of 6 कितना है -4 इंटू 4 मीन्स r dash 2 इक्वल टू -4 for the -16. This is the answer of question number 1. So students, it is our question number 2 and we have given r of x equal to g of 3 plus f of x. We have to differentiate it with respect to x, क्योंकि हमको r dash of 4 की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो r को हमको डिफरेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू x. तो r dash of x इज इक्वल टू g of x का डेरिवेटिव होता है g dash of x. तो ये होगा g dash of 3 plus f of x into डेरिवेटिव ऑफ 3 plus f of x. now g dash of 3 plus f of x into 3 का डेरिवेटिव होता है 0 और f of x का डेरिवेटिव आ जाता है f dash of x. तो पहले मैं इसका एडिशन ले लेता हूँ. g dash of 3 plus f of x into 0 plus f dash x means f dash x. now we have to find the value of this function at x equal to 4. therefore put the value 4 in place of x. f of 4 into f dash of 4 is g dash of. now put the values from this table. 3 as it is plus f of 4. f of x यहाँ पर है और f of 4 की वैल्यू होगी 3 इंटू f dash 4. f dash 4 की वैल्यू होगी दिस इज 5. g dash of 3 plus 3 कितना होगा 6 इंटू 5. g dash of 6 कितना है, देखिए g dash और ये 7 इंटू 5. therefore the value of r dash of 4 equal to 7 5 35. so this is the solution of question number 2 of question 4. so dear students, take the screenshot of this question to learn at home. It is our question number 3, that is s of x equal to f of 9 minus f of x. हमको s dash 4 की वैल्यू फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमको इसका डिफरेंशिएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो s of x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा s dash of x और f of x का डिफरेंशिएशन होगा f dash of x मीन्स 9 माइनस f of x
into derivative of 9 minus f of x. F dash of 9 minus f of x into derivative of 9. 9 is constant, and the derivative of constant all of you know that 0, minus f of x का differentiation होता है f dash of x. So f dash of 9 minus f of x into 0 minus f dash x is minus f dash x. Now we will put the value of x from the given question. x की वैल्यू 4 है यहाँ पर. s dash of 4 means we have to put the value of x at x equal to 4. s dash of 4 equal to f dash of 9 minus f of 4 into minus f dash of 4. f dash of, now put the values from this table. f of 4 की वैल्यू क्या होगी? f of 4 है 3. तो 9 minus 3 into minus f dash 4. f dash 4 की वैल्यू क्या होगी? 5. 9 minus 3 कितना होगा? 6 into minus 5. f dash 6 की वैल्यू, f dash of 6 ये minus 4. minus 4 into minus 5. तो s dash of 4 equal to minus minus plus 5 for the 20. So s dash of 4 equal to 20. So dear students, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 1, 2, 3 इनका सॉल्यूशन दिखा दिया है. आप इसको होमवर्क एज अ होमवर्क यू कैन डू इट एट होम. सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1. ये क्वेश्चन भी आपके लिए बिल्कुल नया है. इससे पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसमें भी ये प्रॉब्लम नहीं था. हमको जो है h ऑफ x दिया है और h डैश ऑफ 1 लेना है. तो जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि डैश जब भी फंक्शन के ऊपर पावर में होगा तो आपको समझना है कि उसका डिफरेंशिएशन हमको लेना होगा. तो h ऑफ x है रूट x, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. h डैश x मीन्स रूट x का डेरिवेटिव. रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x. तो ये लिखा है मैंने 1/2 रूट x मीन्स ये रूट के अंदर जो फंक्शन है वो इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन है. एक रूट फंक्शन है दूसरा रूट के अंदर, तो ये जो रूट के अंदर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हम नेक्स्ट स्टेप में ले सकते हैं. 1/2 रूट 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स इंटू 4 इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है g dash of x. Now put the value of x as 1. h dash of 1. x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर उसकी वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि h dash of 1 मीन्स ये x की वैल्यू 1 है. 1/2 रूट 4 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस 3 इंटू जी ऑफ 1 इंटू 4 इंटू एफ डैश 1 plus 3 into g dash of 1. Now these values are given in the problem. Now 1/2 root 4 into f of 1. f of 1 कितना है 4 plus these 3 into g of 1 की वैल्यू कितनी है वो भी 3 है. 4 into f dash 4 f dash of 1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 इंटू जी डैश 1 की वैल्यू कितनी है 4. लाइक दिस. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई द गिवन प्रॉब्लम. 1/2 रूट 4 4 is 16 plus 3 3 is 9. So 16 plus 9 into bracket 12. 4 3 is 12 plus 3 4 is again 12. Now 1/2 root 25 into this is 12 plus 12 it is 24 into 1/2 into 5. 25 by square root लेंगे तो आएगा 5 into 24. So we can cancel 24 from 2. 2 1 are 2. 2 1 are 2. 2 2 are 4. Therefore the answer will be h dash of 1 equal to 12 1 are 12 upon 5 1 are
5. So this is our final answer.